السلام علیکم معزز سامعین، آپ کے روبرو ہو چکا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے قبل اس کے 2-3 ویڈیوز بھیج چکے ہیں بنا کر یوٹیوب پر آپ پھر میں آج حاضر ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کرنے کے لیے۔ تمام امت مسلمہ کو صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کی، شکر ہے اس کا جو عالمین کا رب۔ بار الہا خلق کائنات رب العزت کی شان یہ ہے کہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، آپ کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ تو تمامی حضرات کے لیے جو میں خاص بات آج لے کے آیا ہوں کہ سامنے عید الاضحیٰ، جسے عید قربہ بھی آپ کہتے ہیں، بقرہ عید جسے کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ نماز ادا کرنا ہے اور سامنے ہے، بہت جلد آپ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو اس کے پہلے جشن ولادت امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام کی سعادت باولادت پہ مبارکباد مومنین کو پیش ایک دوسرے مومنین نے کیا، اور اب عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش ہو، اور انشاءاللہ اس کے آگے عید غدیر کی بھی پیش کی جائے گی مبارکباد۔ لیکن آج ہم چونکہ تھوڑی سی بات آ گئی عید کی، تو عید کے بعد بتا دیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس امت مسلمہ میں تمام مختلف مذاہب ہیں اور فرقے ہیں، اس پر ہمیں کوئی کچھ وہ نہیں ہے، سب کا اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا طور، اپنا سلیقہ مبارک۔ لیکن ہم 5 کے قائد ہیں، لہذا 5 پنجتن ہیں، اور 5 عید ہمارے لیے بڑی معتبر عید ہے، جسے سب سے پہلی عید جو ہے عید ولادت، جو عید جشن ہم مناتے ہیں، عید ولادت، جس میں انبیاء، اوصیاء، صالحین، نبی اور امام 14 معصومین کی جب ولادت ہوتی ہے، وہ صالحین جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو ہمارے لیے جشن ولادت ہے، جس موقع پہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک عید تو وہ ہے، اب وہ 1000 دنوں میں ہے، اس سے جتنی بھی تاریخ ہو، لیکن جشن ولادت ہی کہی جا رہی ہے، تو جشن ولادت کی مبارکباد۔ دوسری عید ہمارے یہاں عزیزان گرامی جب پیدا ہوئے تو کس لیے ہوئے؟ عبادت کے لیے، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ ہم نے سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ جو ہمیں عبادت میں تمام طرح کی بینیفٹ اور فائدہ ملا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے دعاؤں کے ذریعے اور مناجات کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اس کا فائدہ اگر ہم اٹھا لیتے ہیں اور حرام سے بچنے کے لیے، یعنی محرمات سے دور ہونے کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے جتنا بھی عمل اس زمانے میں جو ہو سکتا ہے، جس نے اس کو پوری طریقے سے اسی راہ پر گامزن رہا، آمادہ رہا، تو اس کا فائدہ، یعنی رمضان میں جو نیکیاں، کار خیر، حسن عمل کرنا چاہیے، اس نے اگر کر کے پورا رمضان گزار دیا اور محرمات سے بچ گیا، تو اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ کی بھی خوشیاں ہیں۔ عید جتنا بھی جو کر سکا، تو عید الفطر کہتے ہیں۔ اب یہ آئیے، پیدا ہوئے تو کس لیے؟ ایک تو جشن ولادت، اور دوسرا جو ہے عید الفطر۔
इसे सिलसिला भी देखिए। तो अब जब अल्लाह के पैदा होने का मकसद समझ गए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए हम आए हुए, इबादत में ये नहीं है कि सिर्फ नमाज रोज़ा, तमाम तरह की इबादतें हैं, उस पर कभी बात होगी आगे। जल्दी जल्दी अपनी बात कर दूँ, बहुत मुख्तसर के टाइम में मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। खैर, दूसरी ईद ये हो गई कि पैदा होने का मकसद समझ आया, तो हमने फ़ायदा रमज़ान में, शहरुल्लाह में, अल्लाह के महीने में हमने फ़ायदा उठाया। तीसरी ईद ये है जो हमारे यहाँ ईद उज़ुहा, ईद उल अज़हा और ईद कुर्बा कहते हैं, यानी जब वो ज़िबह अज़ीम में कुर्बानी बदल गई तो उसको ज़ाहिर जब कर दिया करबला में, तो अब ईद उल अज़हा हो गई। और ये ईद उज़ुहा, ईद उल अज़हा की नीयत से नमाज़ पढ़ी जाती है। और आगे अब तीसरी ईद तो ये हो गई। उसके बाद इस ईद के बाद एक ईद और है जिसे हम ईद मुबाहिला कहते हैं, क्योंकि ईद मुबाहिला जो है तारीख़ के महीने के एतबार से बाद में है, लेकिन ये चौथी ईद हमारे लिए ईद उल मुबाहिला है, जो झूठों से किनारा कशी करना है और सच्चों की तायीद करना है, यानी झूठों पे लानत करना है और सच्चों की हक़ बयानी करना है, जिसे ये भी कहा जाता है कभी हमारे यहाँ यानी बुराई से रोकना और नेकी की हिदायत करना, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। तो आप सच्चों की तायीद करना ये है नेक अमल, नेकी की तायीद करना, और झूठों पे लानत करना, उससे दूरा किनारा कशी करना, ये है बुराई से रोकना। तो लिहाजा ये चौथी ईद होगी। अब पाँचवीं ईद है कि जब अल्लाह के सच्चे बंदे हो गए, अल्लाह के पैदा होने का मकसद समझ गए और ईद उल फित्र भी मना लिया, तो अल्लाह ने अपने राज और न्याज की बात, तब जब दोस्त बन जाता है अपना जब इंसान समझ लेता है दलील भी दुनिया में, तब अपने राज और न्याज के सबसे पसंदीदा चीज़ के ज़ाहिर करता है। जो पसंदीदा चीज़ होती है, जो पसंदीदा अमल होता है, तो उसका ज़ाहिर उस वक्त करता है जब अपना बना लेता है। तो दो ईदें जब आपने साबित कर दिया, ईद उल फित्र को आपने इबादत समझा, रमज़ान को उठाया उसका फ़ायदा, और पैदा होने का मकसद समझ गए, तो अल्लाह ने तीसरी ईद ईद उल कुर्बा लिया, यानी आप कुर्बानी का अमल सीख लो, कुर्बानी पेश करते रहना। उस पर एक बहुत बड़ी मजलिस और बहुत बड़ा मौजू है बयान का। तो चौथी ईद मुबाहिला जब सच्चों के साथ हो गए और झूठों से किनारा कशी कर लिया, तो अब आइए विलाए मौलाए कायनात की सनद भी ले लीजिए, जिसे ईद अकबर कहते हैं, ईद क़दीर कहते हैं। इसलिए अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, और जहाँ से नबूवत और इमामत का सिलसिला दोनों का, इमामत का आगाज़ है और नबूवत का आखिर है। तो अब ये जान लीजिए, दरमियान में बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उधर से नबूवत है बाबा की तरफ से और इधर से इमामत है। इसी दरमियान में एक ख़ातून है, क्या मर्तबा है, क्या शान है, आप जान लीजिए। ये पाँचवीं ईद है, यानी विलायत अल्लाह मौला और रसूल मौला, अली मौला, तबारा इमाम मौला, यानी ये ऐसा औला आला हैं कि इनके आगे कोई आला नहीं, सबसे बड़ा आला अल्लाह ताला। उसने इनको इर्तिका बख्शा, बुलंदी बख्शा, और उनके ज़रिए हम मुतमस्सिक रहे अपने इमाम से, अपने सालहीन से। तो इंशाअल्लाह हमारी भी बका है, हम फ़ना नहीं हैं। लिहाजा बस इस मुख्तसर से गुफ्तगू में 8 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी बात कह के अपनी तमाम कर दिया। आज के दिन इतनी सी काफ़ी है कि अगर ये 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से हम मुंसलिक रहें, मुतमस्सिक रहें, तो इंशाअल्लाह हमें राह निजात मिलने वाली है, और हम यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। जिन्होंने इनसे हेरा फेरी की और इनसे मुनहरिफ हुआ और दूसरी चीज़ों में उलझाया, तो वो यहाँ भी फ़ना है और वहाँ भी फ़ना है। मुर्दा का मतलब ही होता है कि वो चलता फिरता रहे, लेकिन मुर्दा है। आप देखिए कि यजीद तख्त पे बैठ के मुर्दा था, और इमाम मज़लूम, ये 14 मासूमीन की सिफत बयान कर रहा हूँ कि नेज़े पे सर कटा के तिलावत कुरान कर रहे हैं। अब अगर खाली एक मासूमीन लोगों ने समझा है, तो ज़रा सा देखिए आकर के करबला में वो मासूमीन सिफत जो सब लोग हैं, ये 14 मासूमीन जो हैं और इनसे जो मुंसलिक हैं, मुतमस्सिक हैं, उनमें वो असर है कि मौत का जायका बता रहे हैं बगैर मौत आए हुए जनाब कासिम अलैहिस्सलाम। तो बस ये आप आज की गुफ्तगू तमाम हो गई, और यहीं पर मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ।
सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम उम्मत मुसलमा और जितने भी मज़हब और मिल्लत धर्म के लोग हैं जो शरीफतुन नफ्स हैं, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने अपने सही रास्ते की तलाश में जुस्तजू रहे। अल्लाह हाफिज़।